इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से 1 जुलाई से धुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। बॉम्बर्स इतना चाहिए रेड भाई। ये गोरे अपने बच्चों को जंग पे तो भेजेंगे नहीं, सबसे पहले हमें भेजा जाएगा। एंड वील डाई इन अ वॉर व्हिच इज नॉट इवन आवर्स टू फाइट। हमें घर वापस चलना चाहिए विक्रम। लेट्स गो बैक। Students are requested to return to the dormitory. Dropping bombs over Britain's largest city in broad daylight. This lightning war will go down in history as the Blitz. Can someone get the lights, please? And somebody shut the windows. Does anybody know what this is? Anyone? Is it a cloud chamber, sir? Yes, but no. In 1911, Charles Thomas Rees Wilson invented the first rudimentary cloud chamber. And finally, in 1927, he captured the first trails of what would change particle physics forever. और उसके लिए उन्हें he won that it's a big prize, Nobel Nobel Prize, sir. Nobel Prize. So It's a Wilson cloud chamber, sir. let's drink to that. Unfortunately, हमारे लिए नहीं. Now, who can tell me what this is? Anyone? सॉरी सर, लेकिन ये हमारा सिलेबस में नहीं है। Syllabus be damned. No one? Syllabus में atomic structure तो होगा? यस सर। Brilliant. So, we used to think that the atom is indivisible. What changed? 1896 में हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव रेडिएशन डिस्कवर करी। जी. और उससे क्या हुआ? He discovered that the radiation from the uranium atom hit the photographic plate. Brilliant. Okay, तो radioactivity की discovery के बाद ये साबित हुआ था that an atom can change form and emit tremendous amounts of energy. But aside from uranium, are all elements radioactive? नहीं सर। So where was this radiation coming from? In space, there are stars, there are supernovae emitting billions of particles, charged particles, that travel all the way through space until they finally reach us here on Earth. मिस्टर विल्सन के कारण इस क्लाउड चेंबर में आप वही मिस्टीरियस पार्टिकल्स देख रहे हैं जिन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं. How did we detect them, sir? Sounding balloons. We attach electrodes to sounding balloons and we send them up into the atmosphere, up high as we can go. And they measure the intensity of the particles. सर, तो क्या कॉस्मिक रेज से हम एटम को तोड़ेंगे? कॉस्मिक रेज से हम एटॉमिक एनर्जी को समझेंगे, उसे हार्नेस करने की कोशिश करेंगे. And if we can, then the applications could be endless. बिजली, dams,
communication, transportation, weaponization, potential even space travel. I think- all of these. मैं साइंटिफिक थियरी नहीं, किसी साइंस फिक्शन के लेक्चर में पहुंच गया हूँ। प्रोफेसर रजा, मुझे नहीं पता था कि आप क्लास अटेंड करते हैं रजा। कभी कभार जब आप जैसे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते। In that case, you were late. अगर आप थियरिटिकल फिजिक्स पढ़ाते तो जरूर अटेंड करता। मुझे लगता है आप Well then, theoretically speaking, class dismissed. Good luck. फिजिक्स छोड़ के ड्रामा का शौक कब से लग गया हूँ मैं? Syllabus तो कोई भी रटवा सकता है रजा. You don't need me for that. No, I need you. Correct. I need you to join here as a permanent faculty. Yeah, मुझे पता चला कि तुम इंडिया रुक रहे हो until the war is over. तो मेरा लेक्चर डिसरप्ट करना तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस था. Maybe you want to tweak it, रजा. शौक एंड ऑ से पढ़ाई पूरी नहीं होती होगी. That is all I was suggesting. I don't think there's a place for me here then. मेरा ड्रामा तुम्हें पसंद नहीं और तुम्हारे सजेशंस मुझे. हमारे काम करने के तरीके अलग जरूर हैं, पर मकसद तो एक ही है, अपने काम और रिसर्च से इस मुल्क को मजबूत बनाना. हाँ, इतना तो मानोगे, ये स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज मैंने यहाँ खड़ी की है अपने बलबूते पे. डिफरेंस सिर्फ तरीके का नहीं है. Your politics bother me as well. What do you mean by that? Isn't your biggest donor the Muslim League? So? No wonder तुम्हारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है. पर कल अगर लीग की डिमांड पूरी हो जाती तो तुम कौन से मुल्क को मजबूत बना रहे होगे? Something to consider. ये मगरिब और मशरिक, ईस्ट एंड वेस्ट की तरह दो अतराफ हैं, and never the twain shall meet. और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक कौम, एक मुल्क बन के साथ रह सकते हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं. ऐसी भूल जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगी. अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज. यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा था. तुम्हारी माँ ने कुछ भी बदलने नहीं दिया. ये तो प्रॉब्लम है पापा, कुछ नहीं बदला. मतलब? वापस आने में जल्दबाजी कर दी पापा, मुझे रुक जाना चाहिए. हाँ, ना वो माहौल है, ना वो प्रोफेसर्स जैसे कैम्ब्रिज में थे. लर्निंग फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड. सोचा था अपनी रिसर्च खत्म करके मैं शिकागो जाऊंगा, गॉडर्ड के साथ काम करूंगा, रॉकेट बनाने का सपना पूरा करूंगा. क्या फर्क पड़ता अगर रुक जाता? तो आज नहीं तो कल ये दिस वॉर वुड हैव बीन ओवर. फिर क्या होता? लड़ाई कभी खत्म नहीं होती विक्रम. जब तक जिंदगी है लड़ाई चलती रहती है, कभी सामने खड़े दुश्मन से तो कभी अपने आप से. बस लड़ने की हिम्मत बांधनी पड़ती है, नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं.
CV Raman? Your interview for the post of researcher at IIC Bangalore has been confirmed for 28th September. Please report at the Cosmic Ray Unit at 8. भाई किसी ने गलती से तुम्हारे रिसर्च पेपर्स वहां भेज दिए होंगे। तुम्हारी बेंगलोर की टिकट बुक हो चुकी है। और हाँ, गलती से भी अपनी माँ को ये मत बताना कि उसके लाडले को वापस इतनी दूर भेजने का इंतजाम मैंने ही किया है, वरना तेरे साथ मेरी टिकट भी कटवा देगी।